Assalamu alaikum students, welcome to the lecture number 24 for the subject of Introduction to Information Technology. In the previous lecture, we performed different practical tasks on Microsoft Excel. We discussed the usage of worksheets. We also discussed how we can manage borders in our printout. Then we discussed the file menu. In this lecture, we are going to discuss some remaining functions of the home ribbon, insert, and then at the end of the lecture, I will discuss how we can use formulas in Microsoft Excel. Now here are some remaining functions of Microsoft Excel. For example, we have this sheet and we can create borders from here. लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत सारे बॉर्डर की टाइप्स हैं. अगर हम चाहें तो किसी सेल पर सिर्फ बॉटम बॉर्डर लगा लें और किसी सेल पर अगर हम चाहें तो वी कैन यूज़ द टॉप बॉर्डर ओनली. सिमिलरली on certain cells we can use left border or on certain cells we can use thick border as well. यहाँ पर बहुत सारी बॉर्डर की ऑप्शंस हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो दिस वाज द वन थिंग दैट वाज रिमेनिंग. नॉर्मली हम जो हेडर्स क्रिएट करते हैं उस पे जो बॉर्डर्स लगाते हैं वो बॉर्डर्स हमारे पास थिक हुआ करते हैं और नॉर्मल जो डाटा है उसके लिए हम थिन बॉर्डर्स को यूज़ कर लेते हैं. देन वी हैव कंडीशनल फॉर्मेटिंग. नाउ दिस इज़ वेरी good function of Excel. Let's suppose I have different student names. Let's suppose ABC, and here we have attendance percentage. Let's suppose we have attendance percentage 74.39. Then we have student B. The attendance percentage is 85.50. Then we have C student, D student, and E student. All have different percentages. ये मैंने जैसे percentages लिख दी हैं. अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या रूल है. यहाँ पर तो आपको सिर्फ 6 रोज नज़र आ रही हैं. आपको यहाँ से आइडिया लगाना आसान है कि कौन सा स्टूडेंट जो है उसकी अटेंडेंस जो है वो शॉर्ट है और किसकी अटेंडेंस शॉर्ट नहीं है. सपोज वी हैव ए क्राइटेरिया दैट इफ़ ए स्टूडेंट हैज़ attendance percentage less than 75, then we can say that attendance is short, and if the percentage is greater than or equal to 75, we can say attendance is okay. So यहाँ पर तो अभी सिर्फ 6 स्टूडेंट्स हैं. हमें आसानी से पता चल रहा है कि इस स्टूडेंट की अटेंडेंस शॉर्ट है, दिस स्टूडेंट हैज़ ए शॉर्ट अटेंडेंस एंड दिस स्टूडेंट आल्सो हैज़ ए short attendance. But if we have a long list containing 50 plus or 70 plus students, then rather using the manual process we use conditional formatting. So first of all we will select the values and go to conditional formatting. Now the task is to highlight the cells or highlight the values that are less than 75. यानी हम ऐसे स्टूडेंट की सेल्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं जिनकी अटेंडेंस जो है वो 75% से कम है. तो हम क्या करेंगे, इन सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और हाईलाइट रूल पे चले जाएंगे. अब हमने हाईलाइट उन स्टूडेंट्स को करना है जिनकी अटेंडेंस 75 से कम है. सो वी विल चूज़ द रूल लेस देन 75% बिकॉज वी आर गोइंग टू हाईलाइट द स्टूडेंट having attendance shortage. So for less than rule it asks for a value. That is our criteria. So our criteria is 75. So you can clearly see all the values that are below 75 are highlighted with the help of a color. Now you can change the color scheme as well from here.
तो आप यहाँ से कलर स्कीम को भी चेंज कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली सेल हाईलाइटिंग रूल्स and this is also known as conditional formatting. And similarly you can go through these options like greater than and between and equal. इन चीज़ों को आप यहाँ से देख सकते हैं. So this was conditional formatting. Now we have a fill, the fill function. यहाँ पर आपको ये फिल फंक्शन नज़र आ रहा है. इसका जो पर्पस है वो वही है जो फिल हैंडल का था. फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन 2 हेयर. नाउ आई सेलेक्ट दीज सेल्स एंड गो टू फिल. अब आप नोटिस करें तो मैंने जो सेल्स हाईलाइट किए या सिलेक्ट किए वो राइट साइड पर हैं. सो आई विल चूज़ द ऑप्शन राइट. सो व्हेन आई चूज़ द ऑप्शन राइट all the cells contain the value 2. So it means by default the value is copied to all cells, and you can see an intelligent box here. So you can do the formatting, you can go to the charts, you can create, you can calculate the average. So आप ये बहुत सारे काम फिल से कर सकते हैं. इसी तरह मैं इस 2 को यहाँ पर सिलेक्ट करूँ और मैं फिल पर जाकर इसे डाउन क्लिक कर दूँ. So this is basically you have copied cell. Similarly, if I select these cells and go to fill, and now here is the option that is series. Now what will happen? It will ask for different options, like we want linear series or growth or date or fill. So I am choosing the linear option, and it asks for step value. Step value is basically the increment value. So if I go with 1, you will see the values 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. If I choose the step 2, then you will see the values 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and 16. Now what happens if I choose the stop value of 100? As I have selected only 10 cells, so it has stopped till 10. Otherwise it had moved to the 100 as well. So ये हमारे पास कुछ functions थे जो remaining थे जो हमने discuss करने थे. Now we have the insert tab. This is the insert tab for Microsoft Excel. You have the option to insert pictures. Just like you can open up certain monograms. So just like Word, when you open up the picture, it displays additional ribbon button to format your pictures. So you can do a lot of things like applying borders, like applying frames, or making the color corrections. So ये बहुत सारे काम हम इन पिक्चर से कर सकते हैं. तो ये पिक्चर्स आपको कहाँ पर काम आएंगी? अगर आपको एक्सेल शीट में कोई लोगो लगाना पड़े, जैसे आपको रिजल्ट शीट्स में नज़र आता है या किसी फाइल में नज़र आता है, सो यू कैन प्रॉबेबली यूज़ दिस फीचर टू इंसर्ट ए लोगो इनसाइड ए सेल. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ द पिक्चर एंड आई वांट टू इंसर्ट इट हेयर. मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले सेल को ओपन अप करूँगा, उसकी डायमेंशंस को पिक्चर के अकॉर्डिंग करूँगा और फिर पिक्चर को ड्रैग करके उस सेल में प्लेस कर दूंगा. सो दिस विल होल्ड देयर एज ए मोनोग्राम. सो यू कैन प्ले विद पिक्चर्स एज वेल. सो दिस इज़ अ मेथड टू यूज़ पिक्चर्स. सिमिलरली you can insert online pictures. You can draw shapes in Excel as well. You can format these shapes, you can fill these shapes, you can change the outline, or you can go with different effects. So जब आप प्रिंट आउट की तरफ जाएंगे, ये डायग्राम्स और पिक्चर्स भी प्रिंट आउट में आपको नजर आएंगे. Then you have smart art, the same concept जो हमने पहले यूज़ किया था. आप किसी भी प्रोसेस की या किसी भी हिरार्की की डायग्राम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल.
देन वी हैव स्क्रीनशॉट ऑप्शन, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि स्क्रीनशॉट्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव द हाइपरलिंक ऑप्शन, यू कैन इंसर्ट हाइपरलिंक like email link or a website link. You can create a separate text box, you can set header and footers, you can use word art in Excel as well, you can insert signature line, equation and symbols. So these are basically the same functions that we used in Microsoft Word. अब जो ज़्यादा यूज़फुल फंक्शन है वो हमारे पास यहाँ पर है चार्ट्स का. So we can use different charts. For example, we have midterm marks, we have sessional marks, we have final term marks, and let's suppose there are 19 in mid and 18 in sessional, and let's suppose there are 51 in final. We can create a pie chart. For this we will first select these values along with labels, and then we will go to the pie chart and will click on the pie chart. Now ये आपके सामने जो है वो पाई चार्ट हमने क्रिएट कर दिया. ये आपको सारी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि मिड के मार्क्स कितने परसेंट हैं, फाइनल के मार्क्स कितने परसेंट हैं और सेशनल के मार्क्स कितने परसेंट हैं. और अगर हम एडिशनली यहाँ से चाहें तो डाटा लेबल्स को भी ऑन कर सकते हैं. डाटा लेबल्स की हम ऑप्शंस को देख सकते हैं कि ये सेंटर में एग्जिस्ट करें या ये डाटा लेबल्स जो है वो इनसाइड एंड पर एग्जिस्ट करें, आउटसाइड एंड पर एग्जिस्ट करें, या इनको हमने बेस्ट फिट पोजीशन पर रखना है, या हमने इनको अदर ऑप्शंस के थ्रू यूज़ करना, जैसे सीरीज़ नेम यूज़ कर लें या कैटेगरी नेम यूज़ कर लें. सो ये आपके पास क्या है, चार्ट डिज़ाइनिंग की ऑप्शंस हैं. यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं कि अगर आप लेट्स सपोज इसके लेजेंड्स को चेंज करना चाहें तो लेजेंड्स को आप टॉप पे प्लेस कर सकते हैं, राइट पे प्लेस कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम चाहें तो आपको ऊपर चार्ट की कलरिंग नज़र आ रही है. यू कैन चेंज द कलर ऑफ द चार्ट एज वेल. ये सिंगल मोनोटोन शेड में है, ये आपके डिफरेंट कलरिंग की शेड में है. यहाँ पर आपको डिफरेंट डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ आवर वर्किंग विद चार्ट. नेक्स्ट हम लोग चार्ट का टाइटल चेंज कर सकते हैं. वी कैन राइट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये आपके पास सिंपल पाई चार्ट. इसी तरह लेट्स सपोज हमारे पास स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5. यहाँ पर सब्जेक्ट है लेट्स सपोज हमारे पास आईटी का, तो यहाँ पर मार्क्स हैं 65 75 80, फिर हम कह देते हैं यहाँ पर 57 है और फिर 61 है. सो फॉर दिस वी कैन क्रिएट ए लाइन चार्ट एज वेल. फॉर दिस वी विल सेलेक्ट the data and go to insert menu. There we have a scatter plot. Now the scatter plot shows that the roll number 1 has got these marks for the subject of IT. Similarly the roll number 2 has got these marks for the subject of IT. आप इनकी डिज़ाइनिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं. आप यहाँ से चार्ट की टाइप को चेंज कर सकते हैं. जैसे कनेक्टेड में हम जा सकते हैं, जिससे कनेक्टेड लाइंस हमें मिल सकती हैं. इसी तरह हम यहाँ से चार्ट की टाइप चेंज करके उसे हम इस वे में ड्रॉ कर सकते हैं. फिर दीज आर द बिग पॉइंट्स. सो ये आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं. सिमिलरली हम कंपैरिजन चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव ईयर 2018, we have year 2019, and we have certain items here, item 1, item 2 and item 3. For example, the price for item 1 in 2018 was 57.33 and in 2019 its price is 75.52. Let's suppose for item 2 the price was
65.28 and now the price is 61.98. Same is the case, the price has changed this much. So इसके लिए हम बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी विल गो टू द चार्ट्स and here is a column chart. So this is basically the column chart. You can select any chart. This shows the comparison. So the chart gives it 3D look and you can look at, here are the legends, here are the years and here is the comparison of different values. अगर आप इस ऑप्शन पर जाएं तो ये आपको चार्ट पर वैल्यूज़ भी दिखा देगा, लेकिन आप इस चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सिंपल चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय यूजिंग दीज चार्ट्स. सो ये हमारे पास मेन फंक्शन था एक्सेल इंसर्ट का, कि जिसके थ्रू हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं. सो आप जो है डिफरेंट चार्ट्स के साथ प्ले अराउंड करके देखिएगा, आप बेटर वे में इसको अंडरस्टैंड करेंगे. Next we have the formulas. I have discussed earlier that Microsoft Excel is used for calculation. To calculate something we will use formulas. There are two types of formulas. One is user defined formula and the other one is built-in function. In both types of formulas we will be using cell addressing. ये जो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी सेल पर क्लिक करें तो उसका एड्रेस शो होता है. नाउ दिस सेल एड्रेस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन बोथ टाइप ऑफ फार्मूलाज वी विल बी यूजिंग द सेल एड्रेसेस. नाउ व्हाट आर यूजर डिफाइंड फार्मूलाज? यूजर डिफाइंड फार्मूलाज आर बेसिकली कस्टम फार्मूलाज दैट आर क्रिएटेड बाय द यूजर और ए पर्सन यूजिंग द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू हिज हर नीड्स. In a user defined formula we can use arithmetic symbols like plus, minus, multiply, divide. We will use the cell addresses and we can use the built-in functions as well. Now what are built-in functions? Microsoft Excel has a number of predefined functions that are pre-written by the developers. ये function पहले से Excel में मौजूद है, हमें ये फंक्शंस या इनके फार्मूलाज खुद से नहीं बनाने पड़ते, बल्कि ये बने बनाए हम इनको सिंपली यूज़ करते हैं. सो दिस मेक्स इट ईजी फॉर अस टू यूज़ दिस फार्मूलाज. हमारे पास मैथ के फार्मूलाज हैं जैसे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, एब्सोलूट. हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के फार्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस. टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए या स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं, और फिर कंडीशनल्स को मैनेज करने के लिए फार्मूलाज हैं. अब हम बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं कि हम किस तरह से रन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई हैव 3 वैल्यूज़ और मैं इनका सम कैलकुलेट करना चाहता हूँ. सम कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूज़र डिफाइंड फार्मूला एंड बिल्ट इन फंक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़र डिफाइंड फार्मूला यूज़ करते हैं. अब फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने वो सेल सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपने कोई रिज़ल्ट गेट करना. फॉर एग्जांपल मैं B5 सेल में इसका रिज़ल्ट चाह रहा हूँ. सो आई विल मूव टू द सेल B5 एंड विल प्रेस और टाइप द इक्वल साइन. फॉर स्टार्टिंग ए फार्मूला we always use the equal sign. Now what is the address of the first value? The first value is 10 and it is placed in a cell having address B2. So we will write B2. So आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने B2 लिखा ये सेल हाईलाइट हो गया. And we are going to add these things. We will type a plus. The next value is 20 and it is placed in a cell B3. So I will write B3. Similarly, I will press the plus button. The third value is present in B4. So I will write B4. So our formula is complete. So if I press the enter button, you can see this is the total. इस
वर्किंग को परफॉर्म करवाने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन भी है। अब बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है? सम फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि सम फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे। सो इन सेल B6 आई एम गोइंग टू अप्लाई द बिल्ट इन फंक्शन। आई विल फर्स्ट टाइप द करेक्टर इक्वल साइन, देन आई विल यूज़ द वर्ड सम। सो जैसे ही मैंने सम लिखा, आपको एस से शुरू होने वाले कई फंक्शंस नज़र आ गए। इसको बेसिकली हम कहते हैं इंटेलिसेंस। जैसे वर्ड है इंटेलिजेंस, इसको हम कहते हैं इंटेलिसेंस, कि जैसे ही हम करेक्टर टाइप करते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलते जाते हैं कि इससे मैच करते हुए कौन कौन से रिजल्ट्स हैं। जैसे मैंने एस यू लिखा तो ऐसे फंक्शंस जो एस यू से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। बट फॉर द करंट सिनेरियो वी आर यूजिंग द सम फंक्शन। नाउ एवरी फंक्शन हैज़ ए नेम, द नेम ऑफ फंक्शन इज सम, देन वी विल यूज स्मॉल ब्रैकेट। Now this function accepts a range of numbers. Now what is our range? We are going to sum the numbers from cell B2 to B4. So we will write cell B2. This is the starting point. Then we will write a colon and then we will give the end point. The end point is B4. So this is basically our range कि हम B2 से लेकर B4 तक जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सम करने जा रहे हैं। नाउ वी विल क्लोज द पैरेंथेसिस एंड प्रेस एंटर। सो अगेन यू कैन सी द रिजल्ट। सो अब अगर आप इस सेल पर क्लिक करें तो आपको फार्मूला बार में फार्मूला नज़र आ रहा और जो एक्चुअली क्या है बिल्ट इन फंक्शन। इसी तरह अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको एक फिर फार्मूला नज़र आ रहा है, लेकिन ये फार्मूला क्या है? यूज़र डिफाइंड फार्मूला। इसी तरह हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन तीनों की हमने एवरेज कैलकुलेट करनी। सो व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर एवरेज? फर्स्ट वी ऐड दीज वैल्यूज एंड देन वी डिवाइड दीज वैल्यूज बाय 3. सो वी नो दैट द सम इज प्रेजेंट इन दिस सेल. वी कैन राइट B5 divided by 3. So this is the average. लेकिन अगर हम बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू एवरेज चाहते हैं, वी विल राइट इक्वल एंड देन वी हैव द फंक्शन एवरेज. वी कैन अगेन डिफाइन द रेंज. अब रेंज डिफाइन करने का एक और मेथड है कि आप सेल पर क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट को होल्ड करते हुए आप सारी रेंज सेलेक्ट करें तो आपके पास ये रेंज आ गई. तो इससे आपने बिल्ट इन फार्मूला से भी एवरेज कैलकुलेट कर ली. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द यूज़र डिफाइंड formula or built-in functions. In the next lecture, I will discuss a detailed example in order to make a DMC for a student. यानी स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स होंगे, उसके मार्क्स से हम किस तरह उसके टोटल कैलकुलेट करेंगे, किस तरह हम उसके ऑब्टेन टोटल कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद एट द एंड हम उसका CGPA कैलकुलेट कैसे करेंगे. वी विल डिस्कस दीज थिंग्स इन आवर नेक्स्ट लेक्चर.